حضرات، مکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی کے مناظر دیکھ کر لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ مصطفیٰ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بتوں سے جو بھرا ہوا تھا کعبے کو بتوں سے پاک کیا۔ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد عرب میں جہاں جہاں بت پرستی ہو رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے ساری بت پرستی کے مراکز کو دور کیا اور جزیرۃ العرب اسلام کا مرکز بن گیا۔ بت پرستی کا نام و نشان اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ حنین بھی ہوئی۔ برادران ملت اسلامیہ، جب مصطفیٰ مکہ کو فتح کر چکے، آپ نے عجم کے بادشاہوں کو بھی اسلام کے لیے خطوط لکھے۔ اس طرح عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا اور 12 ربیع الاول ہی کو، پیر کے دن ہی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی نے اپنی زندگی ظاہری حیات میں جو انقلاب برپا کیا ہے، ہم اس انقلاب کو دیکھتے ہیں۔ چند منٹ میں اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرات گرامی، جب مصطفیٰ مکہ میں تشریف لائے تو جہالت ایسی عروج پر تھی کہ مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے، لیکن حجۃ الوداع کا جب آخری خطبہ آپ دے رہے تھے، علم و حکمت کے ایسے گوہر مصطفیٰ نے بائے تھے کہ 1 لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں قلم آ چکا تھا، اور تعلیم کے دریا ایسے بائے تھے کہ یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کے وصال کے بعد جو یمامہ کی جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب سے، اس میں جو صحابہ شہید ہوئے، 450 ایسے صحابہ تھے جنہیں مکمل زبانی قرآن مجید یاد تھا۔ کوئی مدرسہ بھی یہ رزلٹ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہمیں علم دینا ہوتا ہے تو لاکھوں کی زمین پر کروڑوں کی عمارتیں بنانے کے بعد علم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ تعلیم دے رہے ہیں تو آپ میدان جنگ میں ہیں تو وہاں علم کے گوہر لٹا رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں تو وہاں تعلیم دے رہے ہیں، آپ اپنے حجرے میں ہیں وہاں تعلیم دے رہے ہیں، جنگل میں ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک درخت کو ہلایا پت جھڑ کے موسم میں، درختوں کے پتے گرنے لگے، کہا اے میرے صحابہ کیا دیکھا ہے؟ کہا مصطفیٰ درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ کہا نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح گرتے ہیں۔ جنگل میں ہے تو تعلیم علم کا مرکز بنا دیا۔ مصطفیٰ نے غلامی کے خلاف تحریک چلائی اور غلاموں کو اس طرح آزاد کیا کہ پہلے غلاموں کی آزادی کو عبادت کا درجہ دیا۔ کہا اے لوگو، اگر روزہ ٹوٹ جائے، کفارہ ادا کرنا ہو تو غلام آزاد کرو، زیار ہو جائے تو غلام آزاد کرو، مغفرت مانگنا ہے تو غلام آزاد کرو، جنت مانگنا ہے تو غلام آزاد کرو۔ اور جب حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا تو فرمایا کہ اے لوگو، انسان جسم و جان ایک رکھتا ہے، دل و ارمان ایک رکھتا ہے، پھر یہ غلامی کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے اپنے خاندان کے غلاموں کو آزاد کیا، آج تم بھی اپنے خاندان کے غلاموں کو آزاد کر دو۔ غلامی کا خاتمہ مصطفیٰ جان رحمت نے عورتوں کو حقوق دلائے جن کی کوئی عزت نہیں تھی۔ کہا عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو گھر کی زینت ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو زمانہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس زمانے کو بتایا کہ اے لوگوں، بچیاں زحمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان کی تعلیم و تربیت کرے، پرورش کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ 2 لڑکیوں والی ماں آگے بڑھتی ہے، کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں تمہیں بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کسی کی اگر 1 بیٹی ہو؟ کہا عائشہ اللہ کے گھر میں کمی نہیں ہے، وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے، شادی بیاہ کرے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہا باہر سے آؤ، کھانے کے لیے کچھ لاؤ تو پہلے اپنی بیٹی کو دینا۔
अल फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, कहा मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। साहबा ने देखा कि किसी घर में रोशनी नजर आ रही है। कहा अल्लाह के रसूल ये नूर कैसा है? कहा यहाँ पर कोई यतीम की किफालत हो रही है या किसी बेटी की परवरिश हो रही है। उसके बाद जमाने ने, जिंदा दफन करने वाले जमाने ने अपनी बेटियों को गले लगाया, उन्हें रहमत और बरकत तस्वुर किया। वो दौर जब बेवाओं को मनहूस तस्वुर किया जा रहा था। 25 साल की उम्र में मुस्तफा ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी फरमाई, निकाह फरमाया और जमाने को पैगाम दिया कि ऐ जमाने, तूने बेवा को मनहूस कहा है, तूने सुहागन को अभागन बनाया है, लेकिन मोहम्मद अरबी आज अभागन को सुहागन बनाने जा रहा है। हजरात गिरामी, हर तहरीक जो मुस्तफा ने चलाई, ऊंच नीच का तस्वुर था उस दौर में भी, छोटे बड़े का तस्वुर था। कहा ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन अल फज़्ल इल्ला बित्तक़वा। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, और किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। सबकी शान व मुकाम बराबर है, सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। अमन और शांति के लिए ऐसा काम किया है कि जंग के सारे रास्ते बंद कर दिए। कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, किसी को जबरदस्ती मुसलमान ना बनाया जाए, किसी कोई जबरदस्ती नहीं है। और लोग एक दूसरे पर बर्तरी के लिए जंग करते थे, जमीनों पे कब्जे के लिए जंग करते थे। मुस्तफा ने कहा जिसने बिला हक किसी की जमीन पर कब्जा किया, जमीन कयामत के दिन उसके गले में तौक बनाकर डाल दी जाएगी। जंग का ये रास्ता भी बंद कर दिया, ऊंच नीच का तस्वुर खत्म करके बर्तरी वालों के लिए जंग का रास्ता बंद कर दिया। कहा तुम सब आदम की औलाद हो। हजरात, ये कहना चाहूंगा कि मुस्तफा ने जो इनकलाब बर्पा किया, आखिरी लम्हात से मैं गुजर रहा हूं कि मुस्तफा ने जो इनकलाब बर्पा किया, ऐसी हसीन तहरीक चलाई कि सारा जजीरतुल अरब रश्के जन्नत बन गया। मुस्तफा के इनकलाब के सदक़े में नताइज सुनिए कि कल जहां बुराई आम थी, आज वहां नेकी का जलवा नजर आ रहा था। कल जहां शराब के मटके थे, आज वहां कतरे का भी नामो निशान नहीं था। कल जहां गुलामी की जंजीरें थी, आज वहां इंसानियत आजाद खड़ी मुस्कुरा रही थी। कल जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, आज वहां बच्चियों को गले लगाया जा रहा था, उन्हें बरकत तस्वुर किया जा रहा था। कल जहां सिर्फ और सिर्फ जहालत थी, आज वहां इल्म के मजलिसें आरास्ता हो रही थी। कल जहां औरतों का कोई मुकाम नहीं था, आज उनके सरों पर इज्जत की चादर लहरा रही थी। कल जहां माशरे में बुत परस्ती आम थी, आज वहां सिर्फ खुदा परस्ती का नाम था। कल जहां इंसान एक दूसरे की जान लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, आज वहां इनकलाब मुस्तफा के सदक़े में एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा महसूस कर रहा था। कल जहां इंसान खूनी दरिंदा बन चुका था, आज वहां इंसान के अंदर तब्दीली आ चुकी थी। कल जहां ऊंच नीच का तस्वुर था, आज वहां सारी इंसानियत, छोटे बड़े काले गोरे का जहां तस्वुर था, आज वहां सारी इंसानियत एक सफ में खड़ी थी। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा वो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत। हज़रात गिरामी, ये है मुस्तफा का लाया हुआ इनकलाब। चिटकना कंकरियों का, रेत पर पत्थर पिघल जाना नहीं है खेल, 63 साल में मंजर बदल जाना। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमी जिसने सारी हिला दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी,
नई एक लगन दिल में सबके लगा दी। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मेरे नबी ने वो इनकलाब बर्पा किया, इस कौम की इस्लाह और तस्किए नफ्स की वो दर्सगाह चलाई कि ये वो बारगाह है नबी की बारगाह जहाँ अबू बकर आए सदाकत के अमीन बनकर चमके, उमर आए अदालत का वकार बनकर चमके, उस्मान आए सखावत और शर्म हया का मेयार बनकर चमके, अली आए शुजात और इल्म हिकमत का गुलजार बनकर के चमके, 1 लाख से ज्यादा सहाबा आए जन्नत के हकदार बनकर के चमके। जिस तरफ भी चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। और फिर नबी के इन गुलामों ने नबी का सरमाए हयात लेकर, इश्क की दौलत लेकर, आपकी तालीम लेकर, आपका किरदार लेकर, आपकी गुफ्तार और रफ्तार लेकर, आपकी सीरत का पैगाम लेकर जब दुनिया का सफर किया, दुनिया के कोने कोने में पहुंचे तो दुनिया को इस तरह बदला कि दीवानगाने इश्क मोहम्मद को देखकर थर्रा गई है गर्दिश दौरा कभी कभी, कांधे पे हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अल्लामा इकबाल ने कहा, थे हम ही एक तेरे मारे का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजश्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, नक्श तौहीद का हर दिल पे बसाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। जब मुस्तफा के गुलाम ईरान पहुंचे, ईरान बदल गया, फारस गए, फारस को बदल दिया, रोम गए, रोम बदल गया, उर्दून और फलस्तीन गए, उसे इस्लाम का मरकज बना दिया। यही नहीं बल्कि यमन पहुंचे, यमन बदल गया, और गरीब नवाज बनकर जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान बदल गया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। खुदा फरमाता है कि ऐसा नमूना है जिसके अंदर, जिसको देखकर तुम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हो। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक ऐसा आईना है जिसमें देखकर अपनी जिंदगी को संवार सकते हो, एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर कामयाबी की तलाश है तो रूस और फ्रांस की बुलंद और बाला इमारतों में कामयाबी को तलाश मत करो, दुनियावी कल्चर में कामयाबी को मत ढूंढो, मगरिबी तहजीब में कामयाबी को तलाश मत करो, खताकारों, अदाकारों और गुनाहगारों की रविश में आकर कामयाबी को तलाश मत करो, बल्कि सीधा गुंबद खजरा की छांव में आ जाओ। दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है जहां से कामयाबियां तकसीम होती है। मैं युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही सबसे बड़ा कामयाब है। मुस्तफा के गुलामों, कामयाबी चाहते हो तो उनके पीछे मत दौड़ो जो चांद पर पहुंच चुके हैं। उस मुस्तफा के नक्श कदम को अपनाओ कि चांद जिनकी उंगली का इशारा पाकर दो टुकड़े हो जाता है। ऐ मुस्तफा के गुलामों, उनके पीछे मत दौड़ो जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मुस्तफा की जिंदगी को अपनाओ ये सूरज डूबने के बाद जिनका इशारा पाकर वापस आ जाता है। उन लोगों की रविश को मत अपनाओ जो सितारों पर कमंदे डाल रहे हैं, बल्कि उस मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, सितारे जिनकी बारगाह में झुककर सलाम करते हैं। अगर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख, खुदा मंदे अजम हो जा। आज सीरत से दूरी की बुनियाद पर हमारा क्या हाल हो चुका है, यही नजर आती है गुलशन में फिजा कुछ नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हजरात, आज फिर से दुनिया तालीम के बावजूद दौरे जाहिलियत का नजारा पेश कर रही है। आज जुल्म फिर से इंतहा पर पहुंच चुका है। अबू जहल और अबू लहब आज फिर से भेष बदल कर पैदा हो चुके हैं। आज इस्मतें फिर से तार तार हो रही है। बिन्ते हवा का वकार आज फिर से खतरे में है। आज जमाना फिर तेवर बदल रहा है।
اٹھو اور دنیا کو انقلاب مصطفیٰ سے روشناس کرا دو، کردار مصطفیٰ کی جھلک دکھا دو، سیرت کے سانچے میں ڈھل کر دنیا کو سیرت کے جلوے دکھا دو اور بتا دو کافی نہیں کہ بیٹھ کے مدح و ثنا کرے، اٹھو کہ آج حق کے محبت ادا کرے اور جلال و آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کاپ اٹھے ایسا شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر، بے خطر جادہ پرخار پہ چلنا ہے تجھے اور دستور زمانے کا بدلنا ہے تجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔